Hello, friends. As you know, I am CA Sanjeev S. Thakur. I welcome you in this Power Pack GST MCQ series. This is part 5 and covers full concept of registration in GST. If you have not watched earlier 4 parts, I advise you to watch them for better clarity. The link of these videos is given in the description box. So let's start. These are the highlights of these videos. These videos covers MCQ from all important topics of GST, and every MCQ has been analyzed with the very vibrant and colorful charts and tables. These videos cover full syllabus of GST with the help of MCQ, and every MCQ has been discussed with other related topics so that you may have a very clear bird eye view. The solution of MCQs are based on latest amendments in GST law. And these MCQs are important for all competitive exams. This comes the first MCQ. Which section of CGST Act contains provisions regarding liability of a person to get registered in GST? Friends, registration covers section 22 to 30. So let's check the option. No, 21, no. See section 20. Section 22 provides the details related with the liability to get. So C is the correct answer. Let's check. Yes, C is the correct. Let's move further. These This is the list of all sections related with the registration. So let's check. Section 22 says persons liable for registration. 23 covers provisions related with persons not liable for registration. 24 covers the provisions of compulsory registration. 25 provides us the procedure for registration. Section 26 is related with deemed registration, and 26 provides special provisions for CTP and NRTP. Section 28 covers the provisions related with amendment of registration, and 29 and 30 are related with cancellation of registration and revocation of cancellation. MCQ number 2. Who is required to register for GST in India? So let's check the options. Only manufacturers? No. Only service providers? No. C. Every supplier in a state or union territory who whose turnover exceeds certain threshold. The correct answer. GST registration under section 22 is based on the threshold limit. We'll check in the check the answer. Yes. C is the correct answer. This comes section 22. 22 says persons liable for registration. So who are liable for registration? There are 3 cases, and it is based on aggregate turnover. So when the supplier is dealing only in goods, and second when supplier is dealing in goods as well as services. So in case of the states Manipur, Mizoram, Tripura and Nagaland, the limit is 10 lakh rupees. That means if the aggregate turnover exceeds rupees 10 lakh, then a person is required to get registered in GST. हाउ कैन यू लर्न? कैसे याद करें? तो इसे याद कर सकते हैं मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, MMTN, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड। फिर देखते हैं कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पौंडुचेरी, मेघालय, सिक्किम एंड तेलंगाना। तो इनमें लिमिट कितनी है? 20 लाख रुपीज़। 30 लाख रुपए से एक्सीड करेगा अगर एग्रीगेट टर्नओवर, तो फिर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और ये एग्रीगेट टर्नओवर पैन बेस्ड ऑल इंडिया बेस्ड टर्नओवर होता है। फिर बाकी स्टेट्स हिमाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल अदर स्टेट। बाकी बचे हुए स्टेट्स इनके लिए लिमिट है अगर गुड्स में डील कर रहे हैं तो 40 लाख रुपीज़, और अगर गुड्स और सर्विसेज दोनों में डील कर रहे हैं तो 20 लाख। क्लियर? ये कैसे याद करें? इसे याद कर सकते हैं सेकंड कैटेगरी को, अरुण पुरी यूपी से एमएसटी बनवाई। अरुण पुरी ने यूपी से एमएसटी बनवाई।
एमएसटी होता है ना, मंथली सेविंग टिकट, MST1Y ऐसे लर्न कर सकते हैं, निमोनिक है। अरुणपुरी अरुणाचल प्रदेश, यू उत्तराखंड, पी पुडुचेरी, एम मेघालय, एस सिक्किम एंड टी तेलंगाना। और ये कैसे याद करें? हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, हज अदर्स। ये तीनों याद करने का तरीका: टेक माई ट्रिप टू नागालैंड 10 लाख, अरुणपुरी UPMST 20 लाख, और हज अदर्स 40 और 20। और ये जो 40 लैक्स है ना, 40 लैक्स में कुछ कंडीशंस हैं। वो क्या है? इन फॉलोइंग केसेस हायर थ्रेशोल्ड ऑफ 40 लाख इज नॉट अवेलेबल। ये जो 40 लाख रुपीज़ तक रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है ना, वो अप्लाई नहीं होगा। कब नहीं होगा? वेयर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। अभी हम देखेंगे सेक्शन 24 कवर्स द प्रोविजंस रिलेटेड विद कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। तो अगर वो केस कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का है तो कराना ही पड़ेगा। सेकेंड, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, कोई खुद ही रजिस्ट्रेशन करा लेता है अगर 40 लाख से कम में भी। और थर्ड, सप्लाई ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू, ऐसे और भी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ ये 40 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं होगी। दैट मीन्स कौन सी लिमिट अप्लाई होगी? फिर 20 लाख रुपीज़ ही अप्लाई होगी। नेक्स्ट, MCQ नंबर 3, whether higher threshold limit of 40 lakh is available to supplier of goods who receives interest from the recipient। 40 लाख की लिमिट है ना, वो अप्लाई होती है, वो बेनिफिट मिलता है केवल और केवल गुड्स की सप्लाई पे। और अगर कोई पर्सन इंटरेस्ट रिसीव करता है तो ये हो जाती है सर्विस। और सर्विस के केस में हम हमें लिमिट मिलती है 20 लाख की। क्वेश्चन अराइज होता है, क्या इंटरेस्ट इंक्लूड होती है? तो इंटरेस्ट की अगर सर्विस है, दैट मीन्स आपको केवल और केवल इंटरेस्ट ही मिली है, तो वो सर्विस की डेफिनेशन इंक्लूड नहीं होती है। दैट मीन्स आपको 40 लाख रुपीज़ की का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन ये टर्नओवर में इंक्लूड होती है इंटरेस्ट, लेकिन इसकी वजह से आपको 40 लाख रुपीज़ का एक्सटेंडेड लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा। क्या ऑप्शंस? ए यस। तो क्या आंसर आ रहा है? यस ही ठीक आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कि नो, अवेलेबल विथ सम कंडीशन, नो, डी नन ऑफ द अबव। तो देखते हैं आंसर, ये ठीक लग रहा है, इज द फोर। आउट ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इन GST, कौन रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता? सेक्शन 23 में प्रोविजंस हैं, नॉट लायबल। तो देखते हैं, डीलिंग ओनली इन नॉन टैक्सेबल और एग्जाम सप्लाई, केवल नॉन टैक्सेबल और एग्जाम सप्लाई में डील कर रहा है, तो वो रिक्वायर्ड नहीं होता। एग्रीकल्चरिस्ट, केवल और केवल एग्रीकल्चर से ऑपरेशन से इनकम है, वो भी लायबल नहीं होता। कि सप्लाई एंड टैक्सेबल अंडर, अगर उसकी सप्लाई RCM में टैक्सेबल है, यानी रिसिपिएंट टैक्स देने के लिए बाउंड है, वो भी लायबल नहीं होता। तो ऑल ऑफ द अबव, डी करेक्ट आंसर लग रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, दिस कम्स सेक्शन 23। 23 क्या बताता है? 23 बताता है वो पर्सन्स जिन्हें रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो देखते हैं, इवन इफ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स थ्रेशोल्ड लिमिट, जो हमने देखा ना 20 सेक्शन 22 की लिमिट्स 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख, वो लिमिट क्रॉस कर जाए तो भी ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं वो कौन कौन से लोग हैं। पर्सन्स एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स और सर्विस। नॉन टैक्सेबल गुड्स क्या होते हैं? जैसे अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो नॉन टैक्सेबल होते हैं। केवल उनमें डील कर रहा है पर्सन, एक्सक्लूसिवली, ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन की। पर्सन एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ होली एग्जाम्ड गुड्स और सर्विस, होली एग्जाम, पूरी तरह से एग्जाम्ड है वो गुड्स या सर्विस, तो भी ज़रूरत नहीं है। और एग्रीकल्चरिस्ट सप्लाइंग प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, लैंड के कल्टीवेशन से केवल और केवल एग्रीकल्चर इनकम है, तो भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरत नहीं है। और सप्लाई इज टैक्सेबल अंडर RCM, केवल RCM में टैक्सेबल है सप्लाई, टैक्स नहीं देना, सप्लायर को नहीं देना, रिसिपिएंट को देना है, यानी RCM में कवर है केस, तो भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। MCQ नंबर 5, आउट ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स हु इज रिक्वायर्ड टू टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन GST। तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 में देखते हैं। A, engaged in interstate supply of goods, yes, interstate supply। CTP and RTP, yes, CTP means casual taxable person, NRTP means non-resident taxable person। और C, requires to pay tax under RCM, जिससे RCM में टैक्स देना है, यानी रिसिपिएंट को टैक्स देना है।
ये सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखते हैं, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर लग रहा है। यस, दिस इज करेक्ट आंसर। ये आ गया सेक्शंस। सेक्शन 24, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी। तो किन केसेस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है? माने इवन इफ एग्रीगेट टर्नओवर इज अंडर थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹10 लाख, 20 लाख और 40 लाख, इससे कम हो तो भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। तो देखते हैं कौन कौन। पर्सन एंगेज्ड इन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज के लिए नहीं, सर्विसेज अगर इंटर स्टेट है और इन लिमिट से कम है टर्नओवर, तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। लेकिन गुड्स के केस में कंपलसरी है, इंटर स्टेट सप्लाई है तो। जैसे यूपी से एमपी में सप्लाई है, या राजस्थान से मध्य प्रदेश में सप्लाई है। नेक्स्ट, सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी के लिए भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, और ये 5 डेज प्रायर करना होता है, अभी देखेंगे हम। अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई होती है तो फिर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। नेक्स्ट, पर्सन रिक्वायर्स टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, जो आरसीएम में देना होता है जिससे टैक्स, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। नेक्स्ट, पर्सन रिक्वायर्स टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95 के ईसीओज होते हैं, जैसे स्विगी और जोमेटो है ना, तो स्विगी और जोमेटो, इन्हें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और एजेंट्स वो इशूज हिज ओन इनवॉइस, तो वो एजेंट्स जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे सप्लाई करते हैं लेकिन अपना इनवॉइस इशू करते हैं, अपने नाम से इशू करते हैं, उन्हें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 6, अ पर्सन हु बिकम्स लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 और 24 इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन इन हाउ मेनी डेज। क्वेश्चन अराइज होता है, एक पर्सन लाइबल हो गया, जिस डेट को वो लाइबल हो गया उसके कितने दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है? तो देखते हैं ऑप्शंस। 15, नो, 30, यस, 30 डेज में कराना कंपलसरी है। D45 नो, D60 नो, सो 30 days इज द करेक्ट। 7, a person is required to have PAN to get registration except, तो पैन होना ही चाहिए। दो केसेस में पैन की जरूरत नहीं होती, बाकी पैन होना ही चाहिए कंपलसरी। तो देखते हैं वो दो केसेस कौन से हैं। फर्स्ट, अ पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, एक पर्सन को टीडीएस डिडक्ट करने की टीडीएस डिडक्ट करना है, उसे पैन की जरूरत नहीं होती, केवल टीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहा है। सेकेंड, एनआरटीपी, अब एनआरटीपी तो है ही नॉन रेजिडेंट, तो उसके पास इंडियन इंडियन का पैन होगा नहीं, तो वो भी अलाउड है। बोथ ए एंड बी, यही करेक्ट आंसर लग रहा है। आंसर को, यस, सी इज द करेक्ट। नाउ कम्स इट, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो एक बार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाए तो उसकी वैलिडिटी क्या होती है? तो एक बार मिल जाता है तो जब तक कैंसिल नहीं होता तब तक वैलिड होता है। ऑप्शंस देखते हैं। ए 1 ईयर, नो। बी नो वैलिडिटी, नो। सी वैलिड टिल इट इज कैंसिल्ड, या सी इज द करेक्ट आंसर। बी 5 years, नो, सी इज द करेक्ट, इज द करेक्ट। नेक्स्ट, दिस इज द प्रोसीजर ऑफ अंडर सेक्शन 25। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या देखते हैं। रजिस्ट्रेशन इज पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन, दैट मीन्स परमानेंट अकाउंट नंबर जो इनकम टैक्स वाला होता है, पैन के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन होता है जीएसटी में। दो एक्सेप्शंस हैं, अभी हमने एमसीक्यू में देखा, एक टीडीएस और एनआरटीपी। उनके पास पैन नहीं है, नो पैन की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन इज स्टेट बेस्ड रजिस्ट्रेशन, यानी हर स्टेट के लिए जहां से भी आपकी सप्लाई है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन एक स्टेट में आपके कई सारे बिजनेसेस हैं, तो वहाँ पे एक ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या चाहें तो सभी के लिए डिफरेंट रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। दोनों ऑप्शंस है। वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन, एक पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो भी चाहे तो रजिस्ट्रेशन करा सकता है, यस, अलाउड है। और एक बार रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो सारे प्रोविजन अप्लाई होते हैं। जीएसटी चार्ज करने की लायबिलिटी, जीएसटी पे करने की लायबिलिटी होती है रजिस्टर्ड पर्सन पे। Once a person gets himself registered, he is responsible to pay GST to the government. बैंक अकाउंट अंडर रूल 10A विद इन 45 डेज दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद भी दे सकते हैं, या ड्यू डेट ऑफ रिटर्न 45 डेज रजिस्ट्रेशन के, विद इन 45 डेज, या रिटर्न की ड्यू डेट, इनमें से जो भी पहले हो। और ये जो बैंक अकाउंट हो वो लिंक होना चाहिए आधार से। ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किस फॉर्म पे होता है? REG 06 फॉर्म पे होता है, 15 डिजिट का होता है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो GSTIN जिसे कहते हैं।
और डिस्प्ले करना होता है उसे सभी जगह, बैनर पे, पैम्पलेट पे, इनवॉइस पे, डिस्प्ले बोर्ड पे, लेटर हेड पे, सभी जगह डिस्प्ले करना होता है। और इफेक्टिव डेट क्या होती है रजिस्ट्रेशन की? अगर आपने 30 डेज के अंदर अंदर कर दिया तो फिर विद इन 30 डेज आपने अप्लाई कर दिया तो जब से आप लायबल हुए थे तभी से, और अगर 30 डेज में नहीं किया तो फिर जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हुआ उस दिन से इफेक्टिव होगा। आगे बढ़ते हैं, ये प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का। क्या करना होता है आपको? जीएसटी पोर्टल पे जाना होता है, gst.gov.in। वहाँ पोर्टल पे जाते हैं तो पैन नंबर अपना सबमिट करते हैं, तो पैन नंबर के बाद सीबीडीटी की साइट पे जो पैन नंबर है आपका, वहाँ जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उन ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे पिन आता है। वो जब आप पिन सबमिट करते हैं और स्टेट, जिस स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वो, और बिजनेस का लीगल नेम, ये सबमिट करते हैं तो एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है और ये 15 डेज़ के लिए वैलिड होता है। के बाद आपको फिल करना है पार्ट बी, और पार्ट बी फिल करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है और ऑफिसर के पास ये केस जाएगा। वो ऑफिसर इसे अप्रूव करेगा, अप्रूव कर देता है तो आपको जीएसटी अलॉट हो जाएगा, GST-REG 6। और अगर वो कुछ क्वेरी करता है और क्वेरी का आप रिस्पॉन्ड करते हैं या नहीं करते, अगर नहीं करते क्वेरी का रिस्पॉन्ड तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर रिस्पॉन्ड करते हैं विद इन 7 डेज़ क्वेरी होगी। अगर आप रिस्पॉन्ड करते हैं विद इन 7 डेज़ में तो ऑफिसर या तो अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर वो अप्रूव कर देता है तो फिर आपको GST-REG 06 यानी GST अलॉट हो जाएगा। ये देखते हैं, ये GST-REG 06 है। और ये जो GST है उसमें जो 15 डिजिट हैं उन 15 डिजिट के डिटेल्स हैं। तो 15 डिजिट में क्या होता है, शुरू के जो टू टू डिजिट्स होते हैं उनमें स्टेट कोड होता है, बाकी के 10 डिजिट हैं, नेक्स्ट 10 डिजिट वो परमानेंट अकाउंट नंबर होते हैं। फिर जो एक डिजिट है वो डिजिट यानी 13 डिजिट, वो 13 डिजिट होता है एंटिटी नंबर। और ये क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिकल होता है, यानी 1 से लेके 9 तक होगा और उसके बाद ए से लेके जेड तक होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर ABCD ऐसे जेड तक होगा। तो कितने यहाँ पे वो हो सकते हैं, 35 बिजनेस वर्टिकल्स कवर हो सकते हैं एक स्टेट में। तो जो बिजनेसमैन है वो यहाँ पे लिखेगा 1 2 3 4 से। और ये अल्फ़ाबेट जेड बाय डिफ़ॉल्ट जेड आता है, ये डिपार्टमेंट ने रिजर्व रखा है फ्यूचर के लिए। और फिफ्थ चेक सम डिजिट है, ये सिस्टम जनरेटेड नंबर होता है। ये देखते हैं, व्हाट आर द MCQ नंबर 9, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन फॉर GST रजिस्ट्रेशन। अगर आधार, जो हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखा उसमें आधार का ऑथेंटिकेशन कराना होता है, अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराते हैं तो फिर फिजिकल वेरिफिकेशन होता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का। देखते हैं अभी ऑप्शंस। ए, रजिस्ट्रेशन ही अलाउड नहीं होगा, नो। बी, रजिस्ट्रेशन इज अलाउड, नो। सी, registration is allowed only after physical verification of place of business, yes, C is the correct answer. None of the above, तो एक बार देखते हैं आंसर, yes, C is the correct answer. Moving forward, this comes section 25, आधार authentication process। तो आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी है, टू कंपलसरी नहीं, दैट मीन्स चॉइस है, टू कंट्रोल फेक इनवॉइसेज, डमी एड्रेस एंड मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। पर्सन अप्लाइंग फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन, उसे कराना है आधार ऑथेंटिकेशन। अगर करा लेते हैं तो ठीक, अगर नहीं कराते हैं तो फिर रजिस्ट्रेशन होता है ओनली आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो देखते हैं इंडिविजुअल के केस में वो इंडिविजुअल जो हैं उन्हीं का आधार ऑथेंटिकेशन होगा। अदर पर्सन के केस में HUF हैं तो कर्ता का होगा, कंपनी है तो MD या फुल टाइम डायरेक्टर, AOP हैं तो मेंबर और मैनेजिंग कमेटी, ट्रस्ट है तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ऑथर या कोई और ऑथराइज पर्सन है, या नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, आधार ऑथेंटिकेशन कराना। दिस कम्स MCQ नंबर 10, पैन इज रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन इन GST एक्सेप्ट फॉर, ये हमने देखा, इसके लिए पैन रजिस्ट्रेशन, TDS जिन्हें डिडक्ट करना है उनके लिए पैन कंपलसरी नहीं है, NRTP के लिए नहीं है, तो बोथ ऑफ द अबव यानी सी लग रहा है करेक्ट आंसर, यस, सी द करेक्ट। 11, व्हेन CTP और NRTP आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। देखा था इन्हें 5 दिन पहले लेना होता है, अभी डिटेल में देखेंगे चार्ट।
ऑप्शन ए at the time of removal of goods, no. B at the time of actual supply, no. C 5 days prior to commencement of business, yes. D at the time of submission of return, no. एक बार देख लेते हैं आंसर, yes. C 5 days prior to commencement of business. Next, section 27, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सीटीपी एंड एनआरटीपी। तो ये देखते हैं क्या स्पेशल प्रोविजंस हैं। सीटीपी और एनआरटीपी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन दोनों को लेना होता है अंडर सेक्शन 24 में। सेम जो व्हाइट कलर में है वो सेम है और येलो कलर में डिफरेंस है। थ्रेशोल्ड एग्जाम्पशन नॉट अवेलेबल दोनों को अवेलेबल नहीं होती। वो जो है ना 10 लाख 20 लाख और 40 लाख वाली थ्रेशोल्ड एग्जाम्पशन वो नहीं होती। रजिस्ट्रेशन 5 days प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, दोनों को 5 दिन पहले लेना होता है। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, एस्टिमेटेड टैक्स एडवांस में पे करना होता है, दोनों को करना होता है। सीटीपी के लिए नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होता है यानी एप्लीकेशन होता है जीएसटी आरईजी 01, जो सिंपल फॉर्म जो सभी के लिए होता है। एनआरटीपी के लिए सेपरेट सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन होता है और फॉर्म नंबर है जीएसटी आरईजी 09। कंपोजिशन स्कीम सीटीपी को अवेलेबल होती है, यस। पोजिशन स्कीम एनआरटीपी को अवेलेबल नहीं होती। और रजिस्ट्रेशन जितने दिन के लिए मांगते हैं वो प्लस 90 डेज, मैक्सिमम 90 डेज के लिए मिलता है। और अगर एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो 90 डेज का और कर सकते हैं, दोनों ही केस में। इसके बाद भी अगर बिजनेस होता है तो फिर वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सीटीपी और एनआरटीपी का केस हमने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 4 में बहुत डिटेल में देखा है, तो वहाँ जाके देख। नेक्स्ट 12, पर्सन लाइबल टू मेक एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स डिपॉजिटेड टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन आर। कौन कौन एस्टिमेटेड टैक्स पे करते हैं तो देखते हैं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर, सीटीपी एनआरटीपी है। ये भी हमने देखा सीटीपी और एनआरटीपी को एस्टिमेशन बेसिस पे एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना होता है। तो सी करेक्ट आंसर लग रहा है। 13, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज इशूड इन विच फॉर्म। अभी अभी हमने देखा कौन सा फॉर्म है, तो जीएसटी फर्स्ट ही आ गया आंसर, जीएसटी आरईजी 06, तो करेक्ट आंसर। which is which of the following requires amendment in the GS in the registration certificate। अमेंडमेंट कब होता है, अभी हम अमेंडमेंट का भी बहुत अच्छा सा चार्ट देखेंगे। देखते हैं एक बार अमेंडमेंट। चेंज इन द नेम ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, यस, तो कराना पड़ता है। चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, का कॉन्स्टिट्यूशन ही हो गया, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म थी, पार्टनर्स चेंज हो गए। एडिशन डिलीशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स और डायरेक्टर्स, कुछ उनमें चेंज हो गया। कर्ता, मैनेजिंग कमेटी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, सीईओज और इक्विवेलेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, यस, तो भी करना होता है। तो फिर आर ऑल ऑफ द अबव, ये नहीं आंसर लग रहा है इसका, ऑल ऑफ द अबव सभी केसेस में अमेंडमेंट कराना पड़ता है। ये अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट में दो तरीके होते हैं, कुछ कोर फील्ड्स होती हैं और कुछ नॉन कोर फील्ड्स होती हैं। अगर रजिस्ट्रेशन की कोर फील्ड में अमेंडमेंट है तो कोर फील्ड के लिए जो प्रॉपर ऑफिसर है उसका अप्रूवल लगता है। और नॉन कोर फील्ड आपने सबमिट किया और सबमिट करने के बाद ऑनलाइन सबमिशन से ही अप्रूवल वैलिड होता है। वो देखते हैं कोर फील्ड और नॉन कोर फील्ड क्या है, चार्ट है। सेक्शन 28 टेल्स अस अमेंडमेंट इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो अमेंडमेंट कैसे कैसे होता है, कोर फील्ड, नॉन कोर फील्ड और फील्ड्स जो अमेंड नहीं हो सकती, कांट बी अमेंडेड। तो कोर फील्ड कौन सी है, तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये चेंज हो गए आपके, जीएसटी पोर्टल पे जाओ, अपलोड कर दो, अपडेट कर दो, पिन आएगा, पिन वेरीफाई कर दो, तो आपका वहीं से अमेंड हो जाएगा। कैन बी अमेंडेड ओनली आफ्टर ऑनलाइन वेरिफिकेशन टू जीएसटी पोर्टल। कोर फील्ड्स में अमेंडमेंट करेंगे तो कैन बी अमेंडेड ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ बाय द प्रॉपर ऑफिसर, तो प्रॉपर ऑफिसर अप्रूवल करेगा। तो कोर फील्ड क्या है देखते हैं। लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, नाम बिजनेस का। एड्रेस ऑफ द प्लेस ऑफ द बिजनेस यानी एड्रेस। चेंज इन द पार्टनर्स में, चेंज डायरेक्टर्स, कर्ता, ट्रस्टी, इनमें कोई चेंज होता है तो ये कोर फील्ड्स हैं। फिर देखते हैं जो अमेंड नहीं हो सकती वो फील्ड्स क्या हैं, यानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना होगा, नया लेना पड़ेगा। तो अगर पैन ही चेंज कराना चाहते हैं आप तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है। दी बिजनेस प्लेस फ्रॉम फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, आपका स्टेट ही चेंज हो गया, अगर स्टेट चेंज हो गया तो फिर आपको उस स्टेट से, फर्स्ट स्टेट से कैंसिल कराना होगा, नए स्टेट में न्यू रजिस्ट्रेशन लेना होगा। और सी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस रिजल्टिंग चेंज इन पैन, कुछ ऐसा चेंज हुआ जिससे पैन चेंज हो गया, जैसे अमेलगमेशन हो गया, ऐसा कोई रीज़न, तो पैन ही चेंज हो गया, तो फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन पुराना कैंसिल होगा, नया लेना होगा। एमसीक्यू 15,
व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन? ओ मिसरिप्रेजेंटेशन से झूठ बोल के अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन लिया तो क्या होगा, देखते हैं। लाइबल टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर, यस रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कैंसिल। भी इम्प्रिजनमेंट नहीं, लाइबल टू अ फाइन नॉट एक्सीडिंग, नो नो, तो यही सही आंसर लग रहा है, देख इज द 16। Within how many days information is required to be given to the proper officer regarding any change in registration under section 28? तो सेक्शन 28 में अगर चेंज होता है तो कितने दिन में इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो देख लेते हैं। ए बी, यस सी, 30 डेज में इंफॉर्मेशन देनी होती है, विद इन 30 डेज। करेक्ट आंसर लग रहा है, देख लेते हैं। 15 डेज, यस 15 डेज में देनी होती है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट 17, following non-core information can be amended only after online verification through GST portal। तो कौन सी नॉन कोर इन्फॉर्मेशन है जो जीएसटी पोर्टल के थ्रू ही हो सकती हैं अमेंड, तो देखते हैं। मोबाइल नंबर, अभी भी हमने देखा था मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी, यस बोथ ऑफ द अबव, दोनों, यही दोनों इन्फॉर्मेशन है जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन से हो सकती हैं। अभी अभी हमने चार्ट देखा था, तो सी करेक्ट आंसर लग रहा है, देख लेते हैं। नेक्स्ट 18, for the purpose of amendment in GST registration, what are the core fields which can be amended only after approval by the proper officer? तो core fields कौन कौन सी हैं, एक बार देखते हैं एमसीक्यू। अभी हमने चार्ट में देखे थे। लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, यस। एड्रेस ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस, यस। चेंज इन द पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, कर्ता, ट्रस्टीज एक्सेट्रा, यस। ऑल ऑफ द अबव, कौन सा आंसर लग रहा है, ऑल ऑफ द अबव, यस। नेक्स्ट 19, अंडर सेक्शन 29 रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसिल्ड सुओ मोटो इन द फॉलोइंग केस। रजिस्ट्रेशन दो तरह से कैंसिल हो सकता है, सुओ मोटो यानी बाय रजिस्टर्ड पर्सन, वो खुद से करा सकता है, या ऑफिसर कैंसिल करेगा। तो सेक्शन 29 में केसेस दिए हैं, वो देखते हैं एक बार, एमसीक्यू में देखते हैं, फिर चार्ट को देखेंगे बहुत अच्छा। तो बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड, डिसकंटिन्यू हो गया या डिस्पोज ऑफ हो गया, यस सुओ मोटो करा सकते हैं। बिजनेस ट्रांसफर हो गया तो करा सकते हैं, एमएल कमीशन डीमर्जर हो गया तो भी करा सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव ठीक है। 20, इन विच केसेस जीएसटी डिपार्टमेंट में कैंसिल रजिस्ट्रेशन यानी ऑफिसर कैंसिल कर सकता है, वो केसेस कौन से हैं। नो बिजनेस फ्रॉम डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, कोई बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं। इशूज इनवॉइस विदाउट डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विस, सर्विसेज और गुड्स डिलीवर नहीं किए लेकिन इनवॉइस इशू कर दिया, ओ फर्जी इनवॉइस, फेक इनवॉइस, वो ऑफिसर कैंसिल कर सकता है। अवेल रॉन्गफुल आईटीसी, ओ आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्ग ले लिया, इन सभी केसेस में हो सकता है कैंसिल। ऑल ऑफ द अबव, सी इज करेक्ट आंसर, लेट्स चेक, यस। तो ये केसेस हैं अंडर सेक्शन 29 कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सुओ मोटो के केस क्या हैं, बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ, बी बिजनेस इज ट्रांसफर्ड, एंड सी एमलगेमेशन और डीमर्जर। इन केसेस में सुओ मोटो यानी एसएससी खुद जो टैक्स पेयर है वो खुद से अप्लाई कर सकता है कैंसिलेशन के। और ये केसेस हैं जब डिपार्टमेंट कैंसिल कर सकता है। वो क्या केसेस हैं, ए नो बिजनेस फ्रॉम डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, तो आपके डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है उससे कोई बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं। बी इशूज इनवॉइस विदाउट डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इनवॉइस इशू किया लेकिन गुड्स और सर्विसेज की डिलीवरी नहीं की, एक इनवॉइस। और अवेल रॉन्गफुल आईटीसी, ये तीन केसेस हमने एमसीक्यू में भी देखे थे। आगे देखते हैं कि नो रिटर्न कंटिन्यूस 6 मंथ, 6 महीने से कोई रिटर्न ही सबमिट नहीं किया। कि कंपोजिशन डीलर नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर 3 पीरियड्स कंटिन्यूस, 3 कंटिन्यूस पीरियड से कंपोजिशन डीलर ने नहीं रिटर्न सबमिट किए। इनके लिए क्यूआरएमपी स्कीम होती है, क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट, तो 3 पीरियड तक नहीं। एफ कलेक्ट्स जीएसटी बट डज नॉट पे टू गवर्नमेंट फॉर 3 मंथ्स, ओ कंटिन्यूस 3 महीने से जीएसटी कलेक्ट करे जा रहे हैं, कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट किया लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं किया। जी पर्सन नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड इन जीएसटी फॉर टैक्स टीडीएस टीसीएस, और रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं रहा। इन केसेस में डिपार्टमेंट कैंसिल कर। नंबर 21 और ये लास्ट एमसीक्यू है, विद इन हाउ मेनी डेज एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैन बी फाइल्ड टू द प्रॉपर ऑफिसर। तो एक बार अगर आपका कैंसिल हो गया रजिस्ट्रेशन और आप रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं
यानी आप रीस्टोर कराना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन, तो कितने दिन में कर सकते हैं? तो देखते हैं 30 डेज़, ए 15, बी 30, 30 ठीक आंसर लग रहा है, सी 45, डी 60, तो एक बार देखते हैं आंसर। यस, 30 डेज़ इज़ करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें। आपको कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेरी है या अपना फीडबैक है तो वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अपने फ्रेंड्स से ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस नई वीडियोस के मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नए और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।